Okay, everyone, stand up, join your hands, close your eyes. Let's start with Omkar. Om. 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 वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. What a mighty God we serve. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. What a mighty God we serve. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Everyone, rub your palms. Put it on your eyes. Feel the warmth. Put it aside. Good morning, everyone. How are you all? I am also fine. Thank you. And everyone, please settle at your place. Okay, children. So, who can tell me which date is today? Yes, it's 23rd of October 2024. And which day is today? Today is Wednesday. And how is the weather? It is a sunny weather. Okay. So, children, do you all know your teachers have prepared a surprise skit for you all to make you understand that why we celebrate Diwali? Are you excited to watch the skit? Are you all excited? So, children, it's a request to you all to please maintain the silence so you can understand the skit. And I am going to ask few questions about it. So, are you all ready for it? So, let's give a big round of applause. Okay, but before this, let's celebrate our friend's birthday, children. Okay, so I'll call all the children and respected ma'ams to come forward for the birthday celebrations.
Okay, children, so we have Shaisha Khanna from nursery B. Her birthday is on 26th. She is celebrating today. We have Jaivik Agarwal. His birthday is on 24th, that is tomorrow. He is also celebrating today. And we have Ayana Shah from senior KGB. Her birthday is on 24th. She is celebrating today. So let us celebrate her birthday. Let's sing the song. Come on, children. It's a happy birthday. 103. It's a happy birthday. Happy birthday to you. Make a bow on your birthday. Our birthday. Show us how on your birthday. You will say actively. It's a happy birthday. 103. It's a happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, let's ask them how old are they. So Ayana, how old are you? I'm 6 years old. How old are you? Hello, Tutu. How old are you? 4 years old. 4 years old. Okay, so we will clap 6. Okay, 6 claps. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 1 for. I request the teacher and principal ma'am to give the token of love to them. Happy birthday, Sunshine. Let us all clap. Give them a big round of applause, everyone. Come on. Woo! Thank you so much, ma'am. All right, everyone. So now, are you all ready? Okay, so let's give a big round of applause to all your teachers. Come on. ये कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश अयोध्या के राजा दशरथ को अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेजता हूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी? कृपया मुझे भी इनके साथ वनवास जाने की अनुमति दीजिए। और फिर लक्ष्मण ने भी कहा, पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय मुझे तो मेरे राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हें तुम्हारे प्रिय राम से दूर नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूं। कुछ दिनों पश्चात राजा दशरथ से अनुमति पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वो तीनों वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों तो अत्यधिक सुंदर हैं और बहुत बलशाली भी ज्ञात होते हैं। मैं इनमें से ही किसी एक से विवाह करूंगी। ये सोचकर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के पास गई। पहले वो राम के पास गई और बोली,
हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हो। वो इस वन में अकेला है। राम के विवाह से इनकार करने पर शूर्पणखा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर उसने लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, इस युवक ने विवाह से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? इसका भाई लक्ष्मण भी इसी की तरह दिखता है। मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। ये सोचकर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। किंतु आप इस वन में अकेले हैं और आपको मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करने से इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। क्यों? क्या आपको मेरा रूप पसंद नहीं आया? ऐसा रूप देखकर तो देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए, तो आपका मन कैसे नहीं पिघला? शूर्पणखा की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। नाक कान कटते ही शूर्पणखा अपने राक्षसी रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान रह गए। भैया, ये तो एक राक्षसी है। मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो। शूर्पणखा रोती हुई वहां से चली गई। और सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्रीगण के साथ राज दरबार में बैठा था। भैया रावण, देखिए आपकी बहन शूर्पणखा के साथ क्या हुआ। शूर्पणखा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। भैया, वन में दो भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं। उन्हीं में से एक ने मेरे कान और नाक काटे हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसका सिर धड़ से अलग करके लाता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है, इसीलिए इसका प्रतिशोध भी आपको ऐसे ही लेना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों भाइयों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है। आप उसका हरण कर लीजिए। सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा। रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली। वो एक मायावी राक्षस मारीच के पास गया और बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए लंकेश। मैं राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। किंतु मैंने सुना है राम बहुत वीर है। अगर उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने उनकी पत्नी को हरने में आपकी सहायता की है तो वो मेरा वध कर देंगे। और अगर तुमने मेरी सहायता करने से मना किया तो मैं अभी यहीं तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच समझ गया कि उसके पास अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा है और उसे रावण की सहायता करनी ही पड़ेगी। वो दोनों वन पहुंचे। वहां रावण की तरकीब के अनुसार मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप बनाया और वो राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही सीता की नजर उस पर पड़ी। स्वामी, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर राम अपने धनुष बाण के साथ उस हिरण की तरफ चल दिए। भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन वो हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर
राम की आवाज में कराहता हुआ चीखने लगा। सीते, लक्ष्मण! लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण जानते थे कि ये राक्षसों की चाल है, लेकिन वो सीता को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर बाण से लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता से बोले, माता जो भी हो, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। और वो आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आया और तपस्वी का रूप धारण कर सीता की कुटिया पर पहुंचा। भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, नहीं तो ये तपस्वी बिना भिक्षा ग्रहण किए ही तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा। सीता किसी तपस्वी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आईं। उनके ऐसा करते ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने असली रूप में आ गया। मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूं। और रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी। खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण जैसे महान और वीर योद्धाओं से हुई। और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले राम ने कुंभकर्ण को मारा। फिर लक्ष्मण ने मेघनाद का भी वध कर दिया। और अंत में रावण और राम का युद्ध आरंभ हुआ। रावण बहुत मायावी था। वो अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था। राम के तीर उसे कुछ क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। यहां तक कि राम ने रावण का सिर भी धड़ से अलग कर दिया, किंतु ऐसा करते ही अगले ही क्षण उसका एक नया सिर आ जाता था। ये रावण मरता क्यों नहीं? तभी विभीषण वहां आए और उन्होंने राम से कहा, प्रभु, आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। राम समझ गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ दिया। बाण रावण की नाभि पर जा लगा और रावण कराहते हुए धरती पर जा गिरा। और राम जी युद्ध जीत गए। जीतने के बाद राम जी और सेना सीता जी को लेकर वापस आ गए। 14 साल का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तो पूरे अयोध्या में खुशियां छा गई। सारी प्रजा ने अयोध्या को दियों और फूलों से सजाया और भगवान राम का स्वागत किया।
रावण पे राम की जीत का भी उत्सव मनाया गया। तब से हम हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन भलाई की बुराई पर जीत का त्योहार दिवाली मनाते हैं। जय श्री हैप्पी दिवाली। राम। बोलो जय श्री राम। एक और बार जय श्री राम। Oh, wonderful. So let's give a big round of applause to our teachers. Okay, so children, now I am going to ask you few questions. Are you all ready for it? सबने सही से कहानी देखी थी? Okay. So, the first question. With whom Shri Ram fought with? Okay, Didis are there. You can say in mic. Raban. Very good. Now, okay, so children, you have to raise your silent hand. Okay? Fine? And now tell me, after how many years Shri Ram, Lakshman and Sita came back to Ayodhya? Raise your silent hand. Where is the silent hand? Okay, Didi will come to you, beta. 14. Very good. And one more question. That रावण तो मर ही नहीं रहा था ना, मर रहा था, तो फिर लास्ट में उसको कैसे मारा? रेज योर हैंड. क्योंकि उसने पेट पे मारा. उनकी नाभि में मारा. वेरी नाइस एवरीवन. वेल डन चिल्ड्रन. यू ऑल आर वेरी स्मार्ट गोयंकन्स. Okay, now I would like request our director principal to please come on the stage. Let's clap for her. You were very good. Good morning. Namaste. All of you sit down. All of you sit down. मैम ने आपको कई क्वेश्चंस पूछे, राइट? My one question is, you'll not speak anything, you'll just raise your hand. Okay, everybody quiet? No, there is still noise going on. When two people named, one is good things and one is bad things. The name of two people running is good things and bad things. They start the race. Who wins the race? Who wins the race? Good things, bad things. I just said raise your hand, we'll ask you. दीदी वहाँ पे किसी को भी दे दीजिए जिसके हाथ में है. Good. How many of you agree with her? Bad. Good. Okay, okay, put down your hands. How many say good things will win the race? Good. किसको लगता है good things race win करेगा? और किसको और Bad. अब हाथ नीचे करो. अब किसको लगता है बैड थिंग्स विन करेगा? वो हाथ ऊपर करे. बैड थिंग्स विन करेगा. ओके, द वन इन द ग्रीन कुर्ता पजामा, उस बच्चे को नीचे लाइए प्लीज. हाँ हाँ, यस यस, ही अंडरस्टूड. या प्लीज कम डाउन, स्लोली कम डाउन. What is his name? Who is the mother teacher?
Yashvardhan Goyal. Yes, Yashvardhan. Who wins the race? कौन रेस विन करेगा? गुड थिंग और बैड थिंग? Good thing. Good thing, but there you said bad. He didn't know I was going to call him. अच्छा, कौन कहता है बैड थिंग्स विन करेगा? जो बोल रहे हैं बैड थिंग्स विन करेगा, वो आज ऑडिटोरियम में ही बैठेंगे, क्लास में नहीं जाएंगे. कौन विन करेगा? गुड थिंग, बैड थिंग? गुड थिंग्स. राइट हैंड ऊपर. गुड थिंग्स विल विन. सो what is the lesson today? We should always be good to others. Say, all of you say, we should be always good to others. Second one, never hurt others. Third one, respect everyone. And fourth one, say thank you to all. And the fifth and the last one, very, very important. Very, very important. Say very, very important. We will stand for the right thing. How राम भगवान वो राइट थिंग के लिए खड़े हुए. रावण वो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन रॉन्ग थिंग्स करते थे, बैड थिंग्स करते थे, इसलिए वो मर गए. We celebrate Diwali. Why? Because, say, we celebrate Diwali because good wins over evil. Evil means bad. Okay? You were all very good children and your teachers were wonderful. Teachers, please come here. All those who have participated with the anchor. Please come, please come. You were all wonderful. And जो supporting staff दीदी लोग थे जो props रख रहे थे, आप भी please आइए. One photograph with all of them, Vaibhav bhai. Ankita and Shreya, please come. रावण बीच में, राम और रावण बाजू बाजू में. Shreya, where is Shreya? Come, come. आप लोग बीच में आइए. खुशियाँ बांट लो हर पल, हो हर जीवन उज्ज्वल, ज्योति से जलती ज्योति है. मुस्कानों की मिठाइयाँ, हंसती हवाइयाँ, देखो जहाँ भी अपना लगे. अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, के राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली. आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली. हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली. Woohoo! Wow! Wonderful children. Superb. I'm so proud of you. Well done, Julie ma'am and Dhruva ma'am. Thank you so much. Super. Please write an appreciation note in their almanac today, teachers, and we'll post the video also. Okay, Sakshi ma'am, please share it.
Good job done. Now you can go. Nursery children can, nursery and playgroup can start moving. Junior and senior, please wait. Photo, you want to do it here only? अच्छा ठीक है चलो we'll do photography then.